جب مسلمانوں نے حضرت امام علی بن ابی طالب کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تم میں موجود نہ رہوں۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سرزمین عرب کے 10 بڑے عالم حضرت امام علی بن ابی طالب کے پاس حاضر ہوئے اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ اے علی بن ابی طالب، ہم نے سنا ہے کہ تم نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم سے کسی بھی سوال کا جواب پوچھا جائے گا تو تم سوال پوچھنے والے کو اس کے سوال کا صحیح جواب دو گے۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے خدا کے بندو، یقیناً تم نے صحیح سنا، اور اگر تم مجھ سے روز قیامت تک کی بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اس کے بارے میں بھی صحیح جواب دوں گا۔ تو وہ 10 عالم کہنے لگے کہ اے علی بن ابی طالب، تو پھر ٹھیک ہے، جان لو کہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہم 10 لوگ ایک ایک کر کے تم سے سوال کریں گے، لیکن اے علی بن ابی طالب، یہ بات بھی جان لو کہ ہم 10 لوگ تم سے ایک ہی سوال کو بار بار پوچھیں گے، اور تمہیں ہمارے اسی ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دینا ہوں گے۔ بس اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دے دیے تو ہم تمہیں اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں ہمارے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب نہ دیے تو پھر یقیناً تم ایک جھوٹے خلیفہ ہو۔ دوستو، ان 10 عالموں نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے جو سوال کیے تھے تو وہ سوال آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ واقعہ کوكب دری اور کتاب الکشکول میں موجود ہے۔ کتاب الکشکول کے علاوہ اسی واقعہ سے ہی ملتا ہوا ایک واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی اہل تشیع کی احادیث کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ کی حدیث نمبر 147 اور اہل سنت کی بھی 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ہی معتبر ترین کتاب حلیات الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی حدیث نمبر 243 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی بن ابی طالب نے ان 10 عالموں سے یہ فرمایا کہ اے خدا کے بندو، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو ان 10 عالموں میں سے پہلا عالم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ عالم کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب، علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر جان لو کہ اگر دولت کو استعمال کیا جائے تو دولت کم ہو جاتی ہے، اور اگر علم کو استعمال کیا جائے تو علم زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے علم دولت سے بہتر ہے۔ اس جواب پر وہ پہلا عالم کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب، یقیناً تم نے مجھے میرے پہلے سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دیا ہے۔ بس پھر دوسرا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اے علی بن ابی طالب، بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب، علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک دولت مند انسان سے اس کی دولت کو تو چرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک عالم سے اس کے علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تیسرا عالم بھی آگے بڑھا اور اس نے بھی دوبارہ یہی سوال کیا کہ اے علی بن ابی طالب، بتاؤ، علم بہتر ہے یا پھر مال و دولت؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے بھی دوبارہ یہی فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً علم دولت سے بہتر ہے۔ تو وہ عالم بھی کہنے لگا کہ اے علی بن ابی طالب، علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ دولت مند انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال تو صرف اس کی اولاد تک ہی پہنچتا ہے، جبکہ ایک عالم کے مرنے کے بعد اس کا علم نہ صرف اس کی اپنی اولاد بلکہ اس زمین پہ رہنے والے ہر انسان تک پہنچتا ہے۔
बस फिर चौथा आलिम भी आगे बढ़ा और उसने भी दोबारा यही सवाल किया तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दौलतमंद इंसान का नाम तो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाता है और फिर उसे कोई याद नहीं रखता, जबकि एक आलिम का नाम उसकी मौत के बाद भी उसके इल्म की वजह से जिंदा रहता है और लोग उसे उसकी मौत के बाद भी याद रखते हैं। इसी तरह चौथे आलिम को भी जवाब देने के बाद पांचवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दौलतमंद इंसान की ज्यादातर औलाद नाफरमान होती है और एक आलिम की ज्यादातर औलाद फर्मा बरदार होती है। छठे आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जिसके पास दौलत ज्यादा होती है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं और जिसके पास इल्म ज्यादा होता है तो उसके सिर्फ दोस्त ही ज्यादा होते हैं। सातवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, दौलतमंद इंसान से ज्यादातर लोग दोस्ती सिर्फ उसकी दौलत की वजह से रखते हैं और जब उसकी दौलत खत्म हो जाती है तो उसके दोस्त भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि एक आलिम का इल्म कभी खत्म नहीं होता तो उसके दोस्त भी कभी खत्म नहीं होते। आठवें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि किसी भी बंदाए मोमिन के लिए दौलत तो फिरऔन की मिरास है, जबकि इल्म अल्लाह के पैगंबरों की मिरास है। इसी तरह नवे आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब ये बात भी जान लो कि जिसके पास फिरऔन के बराबर दौलत इकट्ठा हो जाती है तो फिर वो फिरऔन की तरह कहता है कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, लेकिन जिसके पास अंबिया का इल्म इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर इब्राहिम की तरह जलती हुई आग में भी ये कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, सिर्फ तू ही मेरा खुदा है। दोस्तों, अफसोस कि ना हमें अल्लाह के नबियों के नाम आते हैं और ना ही हमारी औलाद को। जब हमें अल्लाह के नबियों के नाम ही मालूम नहीं तो हमने उनकी सीरत और सुन्नत पर फिर कैसे अमल करना है। तो दोस्तों, इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 साल की तहकीक, रिसर्च और मेहनत के बाद अल्लाह के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम की एक मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बनाया है। दोस्तों, इस शजरा नसब में हमने अंबिया कराम के नामों को बिल्कुल उसी तरतीब के साथ लिखा है कि जिस तरतीब से अल्लाह ने अपने इन नबियों और पैगंबरों को इस जमीन पर भेजा था। जैसे कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम, फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, फिर हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, फिर हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, फिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर इसी तरह आखिर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए इस जमीन पर भेजा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि मैंने अभी आपको उन 25 नबियों का नाम बताया है कि जिन 25 नबियों को अल्लाह ने कुरान में खुद नबी कहा है। लिहाजा इसी वजह से तमाम मुसलमान उलमा के नजदीक इन 25 नबियों के नबी होने के बारे में कोई भी इख्तलाफ मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब साथ ही यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि इन 25 नबियों के अलावा 10 नबी ऐसे भी हैं कि जिनका जिक्र कुरान या फिर हदीस में तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम मुसलमान उलमा के नजदीक इन 10 नबियों के नबी होने के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। इन 10 नबियों के नाम हजरत उजैर, हजरत जुल्करनैन, हजरत तालूत, हजरत लुकमान
सुलेमान, हजरत खजर, हजरत शीस, हजरत यूशा बिन नून, हजरत समूईल, हजरत हिजकील और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा दोस्तों हमने इस पोस्टर में अंबिया कराम के बारे में और भी बहुत सी मालूमात को लिखा है, जैसे कि इन तमाम अंबिया कराम के तौरात, ज़बूर और इंजील में मौजूद इब्रानी और यूनानी नाम, कुरान में अल्लाह ने हर नबी का नाम लेकर कितनी मर्तबा जिक्र किया है, और फिर इसी तरह अल्लाह ने लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए अपने इन नबियों और पैगंबरों को जिन इलाकों और शहरों की तरफ भेजा था, तो हमने इस पोस्टर में उन तमाम इलाकों और शहरों के नामों को भी लिखा है। दोस्तों अगर आप अपने घर बैठे अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करना चाहते हैं, तो आप अभी हमारी वेबसाइट www.islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318731447 पर राब्ता करके भी अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बआसानी हासिल कर सकते हैं। बस फिर अब इसी तरह हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस 10वें आलिम से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम भी इस बात को जान लो कि सिर्फ दौलत हासिल करने की जुस्तजू इंसान को शैतान की तरफ ले जाती है, जबकि इल्म हासिल करने की जुस्तजू इंसान को रहमान की तरफ ले जाती है। जबकि इल्म हासिल करने की जुस्तजू इंसान को रहमान की तरफ ले जाती है। लिहाजा ऐ लोगो, इसी वजह से इल्म दौलत से बेहतर है। बस जैसे ही सरजमीन अरब के इन 10 आलिमों ने ये देखा कि हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने तो इनके एक ही सवाल के 10 अलग अलग और सही सही जवाब दे दिए हैं, तो वो तमाम आलिम अपने सरों को झुकाकर ये कहने लगे कि ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, यकीनन आपने हमें हमारे एक ही सवाल के 10 अलग अलग और सही सही अक्लमंदाना जवाब दिए हैं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ खुदा के बंदो, अगर तुम अपनी सारी जिंदगी भी मुझसे इसी एक ही सवाल के अलग अलग जवाब ही क्यों ना पूछते रहो, तो जान लो कि मैं अली तुम्हें तुम्हारी सारी जिंदगी इसी एक ही सवाल के हर बार अलग अलग जवाब देता रहूंगा। बस जैसे ही उन 10 आलिमों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का ये जवाब सुना, तो ये जवाब सुनते ही उन 10 आलिमों ने फौरन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का इकरार किया। आपकी खिलाफत का इकरार करने के बाद उन 10 आलिमों में से एक आलिम आगे बढ़ा और निहायत ही अदब और एहतराम से ये कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इल्म दौलत से बेहतर है तो क्या हमें दौलत को बिल्कुल भी हासिल नहीं करना चाहिए? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि तुम उतनी दौलत को जरूर हासिल करो कि जो दौलत तुम्हारी इज्जत और गैरत की हिफाजत कर सके, जो दौलत तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और का मुख्ताज न होने दे, और जो दौलत तुम्हारी दुनियावी जरूरियात को भी पूरा कर सके। लेकिन ए बंदाए खुदा, याद रखो कि जो दौलत तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरियात को भी पूरा करने से ज्यादा है, तो फिर तुम्हारी उस दौलत में यकीनन मखलूकात खुदा का भी हिस्सा मौजूद है। लिहाजा इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने कुरान में ये इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, और फिर जो ऐसा करेंगे वही तो कयामत के दिन हमेशा हमेशा का नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और जान लो कि कयामत के दिन ना ही तो तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे किसी काम आएगी। लिहाजा ए बंदाए खुदा, तुम्हारा हकीकी माल तो सिर्फ वो आमाल हैं कि जो तुम दुनिया में कमाओ और आखिरत पे लगाओ। दोस्तों, अगर आप अपने घर बैठे अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को हासिल करना चाहते हैं, तो आप अभी हमारी वेबसाइट www.islamiccharts.com को विजिट करें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318731447 पर राब्ता करके भी अंबिया कराम के इस मुकम्मल और मुस्तनद शजरा नसब को बआसानी हासिल कर सकते हैं।